would say कि जो students हैं, those who want to clear, तो they should be serious if they want to go in teaching line. Because wherever you are going, आप किसी भी state में जाएंगे, now wherever you go, they are asking for the CTET exam और ये qualify होना is very important. Because otherwise job में थोड़े से issues आते हैं. Like even while I was working, even am working still from past 25 years, but now I got 87 marks. But then when the things came on कि नहीं अब तो ये करना जरूरी है, तो वो pressure I think students जो they want to be a teacher, they should understand this and they should take it seriously from my side. And it is not a difficult suggest you कि एक बार आप अगर if you are going for paper 1, so you must go through NCERTs also, like थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की अगर आप एक बार एनसीईआरटीज को रीड कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन उनका 15 मार्क्स का विच दे आर गिविंग फ्रॉम द कंटेंट पार्ट वो आपका इजीली निकल जाएगा. व्हाटएवर इफ यू हैव एनी डाउट्स या कुछ भी आपको इश्यू आता है, दे विल गिव यू असेस फॉर द टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप. So hello Reena, first of all many congratulations for qualifying the CTET paper 1. तो बेसिकली मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ रीना कि जो सीटेट का पेपर होता है, अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ईवीएस के पेपर आते हैं, उसमें मैथमेटिक्स रहता है, लैंग्वेज रहता है, देन सीडीपी के भी क्वेश्चंस रहते हैं. तो सीटेट के ओवरऑल पेपर को, पेपर 1 को कितना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है स्टूडेंट्स को? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा सीबीएसई का डेटा देखें ना, तो जो सीबीएसई का डेटा कहता है कि नॉट इवन अ 30-40% student gets the opportunity to qualify the CTET, any of the paper. तो आप मुझे ये बताओ कि सीटेट के पेपर को किस हिसाब से स्टूडेंट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सीटेट का जो पेपर है ना, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम. ठीक है कि आपके 60% मार्क्स आ गए तो यू आर क्वालिफाइड, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नॉन. तो आप जरा इस बात को एक्सप्लेन करो कि सीटेट का जो पेपर है वो कितना ज्यादा स्टूडेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें ना जॉब पर्सपेक्टिव भी डालना कि जॉब पर्सपेक्टिव से भी कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो ओवर टू यू रीना. Thank you, ma'am. And thank you for your wishes that you just congratulated me for my qualifying this exam. Regarding the CTET exam, ma'am, I would say कि जो students हैं, those who want to clear, so they should be serious if they want to go in teaching line. Because wherever you are going, आप किसी भी state में जाएंगे, now wherever you go, they are asking for the CTET exam और ये qualify होना is very important. Because otherwise job में थोड़े से issues आते हैं. Like even while I was working, even I am working still from past 25 years. But now, as per the education department, they are making this very essential part while when you are searching for your job, while in government sector or in private sector, in both the areas, you have to qualify this exam. That is why it was like earlier also I opted for this exam, but it was not like a mandatory thing for us कि आपको करना ही करना है. तो ठीक है, I just appeared once earlier also, but तब मैंने इसको lightly लिया था. मैंने कहा ठीक है, हो गया तो हो गया, it is okay. Then at that time I got 87 marks, but then when the things came on कि नहीं अब तो ये करना जरूरी है, तो वो pressure I think students जो they want to be a teacher, they should understand this and they should take it seriously from my side. And it is not a difficult exam. अगर आप मेरी देखेंगे तो मेरे लिए it is difficult because I am not studying right now. So when you are studying तो आपकी already it is prepared. Even though I have studied in my past, like मैंने भी subjects को पढ़ा हुआ है, like when I was doing my this professional course, so I also did CDP at that time. हमने पढ़ी हुई है चीजें. But then when the long this gap comes in between ना, तो थोड़ा सा आपको ब्रशिंग अप की जरूरत हो जाती है. बट बीइंग स्टूडेंट्स यू आर ऑलरेडी फ्रेश विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स. तो अगर आप सीरियसली करेंगे तो यू कैन इजीली क्वालिफाई. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम फ्रॉम माय साइड, बट ये है यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज जो आपको अपने वीक लगते हैं. लाइक आई फाइंड कि मेरा वीक एरिया थोड़ा सा जो था वो मैथ्स को लेकर था, एंड वन वाज लाइक हिंदी, बिकॉज हिंदी वाज मतलब टिपिकल जो उनके आते शुद्ध वर्ड्स आते हैं, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था. बिकॉज मैंने हिंदी जो है ओनली 10th तक आई हैड स्टडीड एंड आफ्टर दैट आई डिड माय इंग्लिश ऑनर्स. तो मेरा जो बैकग्राउंड थ्रू आउट रहा वो इंग्लिश में आई एम मोर कंफर्टेबल.
तो जो हिंदी के थोड़े वर्ड्स थे वो मुझे थोड़े से अंडरस्टैंड करने में, उन वर्ड्स एंड ऑल, इट वाज थिंग फॉर मी, जो मुझे है मे बी, मतलब इट इज योर ओन एरिया वेयर व्हाट सब्जेक्ट यू फाइंड डिफिकल्ट और कहाँ पे है, बट अदरवाइज द पेपर इज नॉट सो डिफिकल्ट। तो आपको इतना वो अपने आप को नहीं करना कि ओ माय गॉड सीटेट क्लियर होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर लगेगा आपका। सीटीपी का अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, लाइक ऑल दीज स्टूडेंट, आई थिंक आपके टिप्स में होंगी ये चीजें, हम्म एंड तो वो आपका रिगार्डिंग पैडागोजी, तो वो भी आप थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि व्हाट ऑल ऑप्शंस आर देयर एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, सो ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव आंसर। सो हम्म आप कभी भी व्हेन बिकमिंग अ टीचर, आपका एक सेंटर होता है बच्चा, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी गवर्नमेंट्स है, हमारी एनसीईआरटी है या जो भी हमारे बोर्ड्स है, सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल दैट, उनका भी जो सेंटर टारगेट है दैट इज चाइल्ड ओनली। तो जो भी बेस्ट आपका वो आंसर होना चाहिए दैट इज फॉर चाइल्ड ओनली, वेयर द चाइल्ड इज मतलब गेटिंग मोर एडवांटेज, जहाँ पे उसको अच्छे से लिया जा रहा है किसी भी आंसर के अंदर, कि जहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजीज है वो चाइल्ड रिलेटेड है, जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो चाइल्ड रिलेटेड होने चाहिए। तो आपका फर्स्ट, आपका वहीं से यू जस्ट स्टार्ट सॉर्टिंग आउट योर आंसर्स फ्रॉम देयर ओनली। एंड रिगार्डिंग फॉर ईवीएस, again same thing, like 15 question they are from pedagogy and 15 they come from content part. So I would suggest you कि एक बार आप अगर if you are going for paper 1, so you must go through NCERTs also, like थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की अगर आप एक बार NCERTs को रीड कर लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन उनका 15 मार्क्स का विच दे आर गिविंग फ्रॉम द कंटेंट पार्ट, वो आप पे इजिली निकल जाएगा। नथिंग डिफिकल्ट इज देयर, सो फ्रॉम माई साइड डोंट फील अफ्रेड। मेरा भी ऐसा हुआ है, मेरा भी 89 पे आके आई वाज स्टक, 87 पे आके आई वाज स्टक। So okay it is okay with me also, but at that time seriously I was not taking this exam seriously. तो मैं बस हम्म जा रही थी और मैं करके आ रही थी, तो that is why maybe वो एक होता है कि God wants कि नहीं थोड़ा सा भी एफर्ट और डालो, वो वाली चीज हो जाती है। So then seriously I then took, मैंने कहा नहीं, ये जो 1 मार्क भी अटक रहा है तो कहीं ना कहीं इट मींस कहीं प्रिपरेशन की लैकिंग हो रही है। तो एवरी टाइम लक भी आपका तभी साथ देगा, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो इवन आई वाज इनटू दिस ओनली। तो थोड़ा सा मैंने फिर टाइम लिया एंड आई जस्ट रिवाइज द ईवीएस चैप्टर्स आल्सो दिस टाइम व्हेन आई वेंट एग्जाम। और थोड़ा सा मैंने जो मैथ्स का एरिया था जो मुझे थोड़ा सा वीक लगता था, बिकॉज इट इज लॉन्ग back, मतलब I did maths also till 10th only I studied maths also। तो वो जो एरियाज थे मेरे, तो वेयर मतलब मेरी बिल्कुल टचिंग वाला पार्ट नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने वहां पे फोकस किया इस टाइम पर। एंड मोर ओवर ऑन हिंदी टर्म्स, बिकॉज हिंदी के जो थोड़े से शुद्ध हिंदी के जो टर्म्स होते हैं, तो हम्म डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। मे बी आपको इजी लगे, इट इज ऑन योर ओन कि आपका कैसा बैकग्राउंड रहा है। सो डोंट वरी, आई विल से, आई विल मोटिवेट ऑल द स्टूडेंट्स, all the children, those who are appearing, so don't be afraid। आपको बिल्कुल मत डरो, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो भी आएगा सीटेट का वो आपकी स्टडी से बाहर नहीं आएगा। बट प्लीज आई विल एडवाइस कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को बाइबल की तरह आप ले उसको, एंड जस्ट ट्रीट एज अ बाइबल फॉर योरसेल्फ, और उसको एक बार जरूर गो थ्रू करके जाए व्हेनेवर यू गो फॉर योर एग्जाम, एंड यू विल क्लियर इट। सो डोंट वरी। Okay, Reena. So, Reena, this was like a great, I believe, initiation, or this is the one of the best approach towards the seated paper. But I'll come to the second part of my question कि अगर मान लो सपोज कोई पार्ट आपका वीक है, आपने जैसे अभी कहा कि एनसीईआरटी को आप बाइबल मानो एंड ऑल, लेट्स से अगर मैं एक छोटा सा टॉपिक लूं, एक छोटा सा सब्जेक्ट लूं सीडीपी का। सीडीपी जो सब्जेक्ट होता है ना रीना, वो हम कभी पढ़ते नहीं अपने स्कूल टाइम में। अगर कोई स्टूडेंट टीचर एजुकेशन फील्ड का नहीं है तो बेसिकली उसे सीडीपी के बारे में भी नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो सीडीपी जो एक ऐसा टॉपिक आता है या एक ऐसा सब्जेक्ट आता है ना, उसके जो 30 क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो हमारे पूरे लाइफ टाइम में नए रहते, वो उसको हमने कभी देखे ही नहीं होते। और कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ना वही पोर्शन जाके फंस जाता है। आपने जैसे मैथ्स के क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहा, ईवीएस के रिगार्डिंग कहा, कंटेंट पार्ट के रिगार्डिंग कहा, तो रीना आप कुछ ऐसे अप्रोचेस हमारे साथ डिस्कस करो कि सपोज किसी स्टूडेंट का कोई पार्ट वीक है, किसी पार्ट को उसे इनहेंस करना है, तो उसे क्या स्पेशल मेजर्स लेके चलने चाहिए कि उस पे वो काम कर लेगा या काम कर लेगी, और जिससे
होते ना, जैसे आपने कहा 87 में आके अटक रहा, 89 में आके अटक रहा, वो सारे गैप्स को फिल करते हुए कोशिश करे कि फर्स्ट टाइम में ही उसके 90 91 एटलीस्ट 60% मार्क्स आ जाए। क्योंकि थोड़ा-सा अगर हम इस बात को भी देखें तो द वर्क दैट यू आर डूइंग, लाइक आप जॉब में हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे आपने कुछ तो ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ बनाई होगी जिससे आपका जो वीक पोर्शन है वो कवर हो रहा होगा, और प्लस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी अदर स्टूडेंट से डिफरेंट है। तो वहाँ पे भी आपने क्या ऐसा स्पेशल प्रिकॉशंस लिया, क्या स्पेशल आपने मेजर्स लिए, वो थोड़ा-सा आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करो, रीना। Ma'am, like being I am basically like working also, and हुँ, I'm mother also, and matlab, यस, I have many responsibilities on my shoulder right now. फॉर So श्योर। yeah, so when you are working, ma'am, तो आपका कोई time नहीं होता. हुँ, Okay, so हुँ, matlab you have no time कि any time कुछ भी आपको आ जाएगा from wherever whichever institution you have joined या जहाँ से भी आप work कर रहे हो. तो यू हैव टू मैनेज द थिंग. सबसे पहले आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आप स्टूडेंट भी हैं देन ऑल्सो यू हैव टू मैनेज मेनी थिंग्स. लाइक अगर आप मेरे आप देखेंगे तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग लेडी, एंड देर आर मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर राइट नाउ. सो इसके लिए मैंने बस एक यही अपना किया था कि आई ऑल्सो मैनेज, मतलब माई टाइम शेड्यूल. बिकॉज एक मेरा टाइम होता था व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम माय वर्क प्लेस, देन आई हैड हुँ, टू गिव सम टाइम टू माय चिल्ड्रन आल्सो. मुझे घर का भी देखना होता था कि व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड बीइंग अ लेडी ऑफ द हाउस. सो बट देन एट नाइट आई यूज्ड टू टेक आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ. तो मुझे ये हुँ, था कि नहीं, अगर अब मुझे ये करना है तो आई हैव टू जस्ट प्लान माई डे, और मुझे कहीं ना हुँ, कहीं उसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा. तो इट वॉज ओनली द नाइट टाइम विच आई कुड टेक आउट, बिकॉज the whole day it was just running. So only while after the dinner and all was finished, then I used to take out some time for myself. Not much, but then that was a period where I can, मतलब थोड़ा से मैं अपने लिए कर सकती थी the हुँ, हुँ, work. So that was the only period which I took out, हुँ, and then only I used to sit and study the things for CTET. So that was the ओके, only period. ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा-सा अगर चर्चा करें कि वो वीक पोर्शन के लिए आपने क्या काम करा, कि जो अगर आप मॉक लगा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि लेट्स से ईवीएस का पार्ट मेरा वीक है, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई? अगर मैं लास्ट के कुछ दिनों की बात करूँ, लास्ट 30 डेज़ या लास्ट 15 डेज़ में आपने क्या स्पेसिफिक मेजर लिए फॉर द वीकर पोर्शन? रीना। I'll just suggest मैम कि अगर लास्ट के डेज जब बच्चों के पास में रह जाते हैं, ओनली 10 to 15 days, तो हुँ, उस हुँ, समय आप सब पढ़ना बंद कर दो. ओनली जस्ट फोकस ऑन PYQs. तो दिस इज द ओके, ओनली थिंग जो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तब तक जो आप पढ़ सकते हो बाय दैट टाइम. बिकॉज वो जो 15 दिन लास्ट के हैं, वो अगर आप PYQs पे फोकस करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि इस पार्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. बिकॉज जब आप कंटेंट रीड करो तो आपका फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग पे, व्हाट इज रिटन इन द कंटेंट, व्हाट इज देयर. तो आप उस हिसाब से यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स. बट व्हेन यू सी द क्वेश्चन तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. दे आंसर इज देयर ओनली, बट वो किस वे में ट्विस्ट होकर पूछा जाएगा आपसे, मतलब द लैंग्वेज विल बी ट्विस्टेड. तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको PYQ से आएगी. तो आई विल सजेस्ट कि आपको सब कुछ आता है, वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है आपको. आप जब पढ़ रहे हो, आप इतने टाइम से आपका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, बट जो अंडरस्टैंडिंग आती है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो आपको PYQs बहुत हेल्प करेंगे. सो माई रिक्वेस्ट इज दिस कि जो भी बच्चे कर रहे हैं, दे जो लास्ट के 15 दिन है बच्चे, अब आप सिर्फ अपना PYQs पे फोकस करना. कंटेंट जो आपने कर लिया वो आपकी नॉलेज गेन हो गई है, तो दैट इज देयर विद यू. बट हाउ टू, मतलब ब्रिंग दैट थिंग इनटू प्रैक्टिकल दिस थिंग कि वहां आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन का, वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको PYQs विल हेल्प अ लॉट. सो देर आर मल्टीपल PYQs अपलोडेड ऑन द साइट ऑल्सो. तो जस्ट गो विद दैट. तो आप अपने लिए PYQs को जरूर रखें 10 to 15 days के लिए. okay, okay. Thank you so much, Reena. So now I'll come to the लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि आपका ओवरऑल जर्नी अगर मैं डेली वाइब्स के रिगार्डिंग चर्चा करूं तो वो कैसा रहा? मतलब डेली वाइब्स पे आप
किस तरीके से जुड़े डेली बाइट्स के बैचेस का, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब एक एकदम मैं रॉ एक्सपीरियंस की अगर बात करूं रीना, तो वो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे रिगार्डिंग डेली बाइट्स के एनवायरनमेंट, टाइमिंग, फैकल्टीज, एवरीथिंग एवरीथिंग इफ यू आर टचिंग, तो हाउ कुड यू एक्सप्रेस इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्म फॉर आवर अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो सोच रहे हैं कि वो सीटेट का बैच ज्वाइन करें डेली बाइट्स पे? तो Yeah, रीना। ma'am. I'm myself is very grateful for the entire team, because even I was not aware about this Delhi Bytes. One of my colleague, she guided me about this. She had cleared both the exams from this only from here only from Delhi Bytes, and she only guided me कि I was into this के मतलब मैंने कहा मैं कैसे करूँ, मुझे तो अब मतलब इतने साल हो गए पढ़े हुए, how will I start up with all the things, और मतलब वो था कि starting from the scratch आपको पता है चीजें, बट अगेन ब्रशिंग अप फॉर मतलब अबाउट द थिंग्स यू नीड समवन कि आपको एक ब्रशिंग अप के लिए भी यू नीड सम गाइडेंस और यू वांट दैट. She only guided me कि ma'am, I had cleared both my papers from this, and their faculty is very nice, and the teachers are very supportive. They have their live sessions, so you won't be facing any problem there, and the number of students is also ma'am के ज़्यादा नहीं है. One-to-one interaction is there, and whatever doubts you have, the faculty is going to answer there and then. So don't worry, you go for this. And basically, I was asking Menaka, my friend name was Chandrika, so she had cleared both the papers from here only. ओके। And हाँ she हाँ। only told me. So are you aware of her? यस यस, आई नो आई नो। हाँ, ओके, गॉट इट। So she only guided me about this, and I asked her, मैंने कहा, but what will be the timings? Because आपको पता ही है कि हम लोग घर जब जाते हैं, and then again the other things start, हमारी second life का वो period होता है, तो हो we जाता don't है। have much of the time कि हम लोग करें. Then she said, ma'am, you don't worry, उनका 9 to 11 वाला batch है. मैंने कहा चलो ठीक है, then I can manage, because वही है कि I can prepare the dinner and all, वो मैं सब करके then I used to sit by 9 to 11. तो that was a good thing which मतलब हेल्प मी अलॉट कि मुझे वही था कि मैं बीच वाले आवर्स में लाइक 4 to 6 का अगर कोई बैच है या 5 to 7 का बैच है, देन आई कैन नॉट ज्वाइन, बिकॉज घर जाके देर आर स्टिल मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें करनी होती है कवर अप. तो बीइंग मतलब वही है कि सुबह आप सब छोड़ कर जाते हो, एंड देन व्हेन यू कम बैक तो यू जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दोस थिंग्स, देन व्हेन यू रीच होम. तो देन आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन शी टोल्ड मी मैम 9 to 11 का बैच है, आपका हो जाएगा, सो यू गो फॉर दैट. सो मैंने कहा थैंक यू. सो this is how I came to know about Delhi Bites. And then when I joined Delhi Bite, it was really a good experience, as she told me. Okay, thank you so much, Reena. This was great. Now I'll come to the just one liner type thing कि अगर आपको इस पूरे बात को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन में समेटनी हो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए, तो आप किस तरीके से समेट के हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स के सामने आप रखोगे? लाइक एक एकदम कंक्लूसिव लाइन जो हम कहते हैं ना कि सारा सम अप करके अगर 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्रेस करना हो रीना, so like how will you do it? I will just guide all the students ke if you want to clear your CTET, this is one of the good institution which matlab I came across, and I would recommend कि आपका seriously one-to-one interaction है, and teachers are very much supportive, and whatever if you have any doubts या कुछ भी आपको issue आता है, they will give you access for the Telegram channel, WhatsApp is there. So you can just write your doubts or whatever issues you have there, and then it will be sorted out. So don't worry, and मतलब don't feel के आपका money है, आपका वो हुआ नहीं पूरा. So don't go for that thing. So it is a good thing, and they will guide you how to go for with the preparations, and they will share with you the mock series also. So you will get great help. So I will just appreciate the work of the team, which they even matlab I felt through my journey. So it is really one of the good institutions which I came across, and I would really this tell other children also, they can also join this, and they will really clear both the exams if they are preparing for. Okay, okay. Thank you so much, Reena. This was great. Actually, I had a great experience with you having a conversation regarding everything. Thank you so much, Reena, for Thank your you, ma'am. time and for your words, and all the best for your interview future. Thank Thank you. you. And thank you, Team Delhi Bites. Really
they have really a good faculty members, and all the faculty members are really working hard. So my just heartfelt gratitude to everyone, each and every member of the team. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.